communication. I am Gauri Rani and I'll be taking you all through this enriching experience today. But before we begin, let's acknowledge the esteemed dignitaries present here with us today. We have Professor Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, and Dr. Swati Jain, Head of Mentoring Cell, who have graciously joined us to support and encourage our students on their entrepreneurial journey. Let's give them a round of applause. Now, let's move on to our guest speaker for today. We are honored to have Dr. Ritu Dubey Tiwari with us. Dr. Ritu Dubey Tiwari is a highly accomplished professional in the field of media and communication. With a diverse educational background, including a doctorate and postgraduate degree in advertising, public relations, and mass communication, she brings a wealth of knowledge and expertise to her work. Dr. Tiwari has held various positions in prestigious institutions such as the Scott Media College, Makhanlal Chaturvedi University, and Delhi University. She is actively involved in consulting, research guidance, and serving as a board member and external examiner in renowned universities across India. Dr. Tiwari is a specific writer with published articles in national newspapers and magazines focusing on media and cybersecurity. She has also directed several documentary films, receiving awards such as the Dada Saheb Phalke Puraskar and Narad Samman for her contribution to media education. Her work has been recognized by esteemed organizations and government bodies, including the Prime Minister's Office of India. Dr. Ritu Dubey Tiwari is truly an inspiring figure in the field of media and communication. Her insights are sure to inspire and guide our students as they embark on their own entrepreneurial endeavors. Let's welcome Dr. Ritu Dubey Tiwari with a big round of applause. To help the students thrive, not just survive during their time here at DME Media School. The objectives of mentoring includes helping students adapt to their new environment, understand the curriculum, build healthy relationships, and develop their personalities. The mentoring cell strives to keep guiding the students towards the right career paths. In this series, we have organized this session with Dr. Ritu Dubey Tiwari. During this session, Dr. Ritu Dubey Tiwari will motivate our students and instill the confidence to take on challenging tasks in their lives. She will share her experience and insight on entrepreneurship in media and communication industry. In the media, paving the way of our students to actively participate in co-curricular and extracurricular activities. But before that, I would like request Dr. Susmita Bala, ma'am, to formally welcome the guest. DME Media School, Professor Dr. Susmita Bala, ma'am, to address the gathering and mark the beginning of this program. Over to you, ma'am. In this session, it's a mentoring session for you. I think, and Swati Jain, Dr. Swati Jain, and faculty members and students. Welcome you all in this session. इस mentoring session में वैसे तो mentoring all the time we mentor you all. Mentoring session is required for your session like any subject, anything, any particular area, उसमें mentoring की बहुत ज़रूरत होती है. तो यहाँ मैम आपको different aspects के साथ में आपसे बात करेंगी and it's important for you listen carefully, understand carefully and कोई भी questions होते हैं आपके आप पूछेंगे, बात करेंगे, interactive session होगा, that will be better for you. और मैम आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं उनको रिस्पॉन्ड करेंगी, उनके आपको जवाब बताएंगी और आपकी क्वेरीज को फुलफिल करेंगे. थैंक यू. Thank you so much, ma'am, for such insightful words.
So without further ado, let's get started with this enriching session on entrepreneurship in media and communication with Dr. Ritu Dubey Tiwari. Get ready to be inspired. Thank you so much, Bala ma'am. Thank you so much, Swati ma'am, Pramod sir, Isha. Thank you. A very good afternoon to all. Have you heard this advice before that follow your passion or do what you love? Do we are capable to follow this advice? How many of you? Very few. See, before this session, I would like to clear very simple 3 things to all of you. The entrepreneurship is not something to teach, believe me. And especially when I am in front of those people, those are far smarter in new media as comparative to our old generation, right? So, there is 3 things we have to remember before this session. First, nobody is capable enough to teach you how to become an entrepreneur. First thing. Second thing, what we have to do, we need 2 ways of communication. Smile, photographs. So what we need 2 ways of communication to understand or to better blend of experience and Josh, right? Third thing, it is related to something which is new, right? And I'm sure it is very difficult to sit in this beautiful hall just because of the electricity issues. So I'm trying to compile my session in very limited time because I would like to more interact with you as comparative to formal PPT presentation. See, there is a 3 different aspect of our session. First is related to the PPT. In that PPT, we just go through with formal things. What is entrepreneurship? What type of entrepreneurship can be possible? And the most important thing, some of the websites, those are really good to understand how you are capable enough to adopt particular profession. Right? And second thing is, which is related to our experience, current scenario. And third aspect is discussion. And in this discussion, there is one work I would like to assign all of you. It is related to your passion. It is related to your dream, right? It is related to the business models. ये जो first 3 आपके points हैं, these are those points. Those are more mainly for the business models. But the last one is innovators. जानते हैं आप क्यों अलग हैं? आप इसलिए अलग हैं इस दुनिया में क्योंकि आप अलग सोचते हैं। अगर आपके पास आपके बगल में बैठे हुए व्यक्ति से कुछ अलग सोच है, कुछ एक्स्ट्रा आप सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए है, अदरवाइज आपके लिए 9 to 5 जॉब है। तो इट इज अप टू यू। आप डिसाइड कीजिए कि आप किस चीज के लिए हैं। जैसे जॉब 9 to 5 जॉब इज नॉट मेंट फॉर एवरीबॉडी, वैसे भी एंटरप्रेन्योरशिप भी सबके लिए नहीं है। इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे कैसे जब हम बात करते हैं, एक बहुत सिंपल सी चीज आपको समझने की जरूरत है। आज का वक्त इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? दिस सिनेरियो इज वेरी क्रूशियल सिनेरियो। आप देख रहे होंगे, जब आप सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ, बाला मैम आपको भी, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप। जब जॉब, ट्रेडिशनल जॉब लगातार कम हो रही है, ऐसे सिनेरियो में अगर आप इस टॉपिक को अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं, उनको दूसरे लोगों के साथ में इंटरेक्शन का ऑप्शन दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सो बिलीव मी यू आर इन द वेरी राइट प्लेस। और डीएमई अपने वक्त से आगे सोचने के लिए मशहूर है। तो आपके पास में बहुत अच्छा ब्रांड है,
आपके पास में स्वाति मैम है जो आपको बिजनेस से रिलेटेड इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बेटर गाइडेंस दे सकती हैं। आपके साथ प्रमोद सर है, विशाल सर है जो आपको मीडिया के बारे में बता सकते हैं। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन दोनों चीज़ों का एक ब्रांड है। जब भी हम बात करते हैं समय की, देयर इज 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। पहली चीज़, ये समय इस टॉपिक को, एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस करने के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिशनल जॉब्स कम हो रहे हैं। आप देखिए ना, आप अगर पिछले 5 साल का डेटा उठा के देखते हैं, मैं मीडिया की फील्ड की बात कर रही हूँ, देयर इज अ वेरी फ्यू जॉब्स नाउ, बहुत कम हमारे पास मीडिया हाउसेस हैं। दूसरी बात, जब भी आप मीडिया के लिए अप्लाई करते हैं वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब है मिनिमम 25 इयर्स। आपके एज ग्रुप में कितने लोग 25 इयर्स तक वेट कर सकते हैं जॉब के लिए? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, राइट? तो पहली चीज, आप यंग हैं एंड फॉर यू एक्सपेरिमेंट्स करना, रिस्क लेना इजी है आपके लिए। आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज कंपैरेटिव टू है नहीं या कम है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। दूसरी चीज जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया, तीसरी चीज, डेटा बिकम्स so cheap nowadays। डेटा चीप होने की वजह से, सस्ता होने की वजह से लोग गूगल पे सर्च करने की जगह एप्स को ज़्यादा बेनिफिशियल मानते हैं, ज़्यादा इजीली हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। सो यू हैव अ बिग मार्केट फॉर ऐप डिजाइनिंग ऑल्सो। अभी मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाहती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम एंटरप्रेन्योरशिप पे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली बात करना चाहती हूँ सोशल मीडिया पे। व्हाई सोशल मीडिया? 3 things. Again, there's 3 things you have to remember. Social media is itself the easiest way to establish yourself. पहली चीज। Second thing, social media itself the most powerful tool to establish yourself. Third thing, because of the population. कौन से नंबर पे हैं हम? राइट? तो बात करते हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जब हम बात करते हैं तो एक बार देखो कि कोई टीचर है वो और इधर के बाहर There are various ways, there are different ways जिसके थ्रू हम अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है स्पॉन्सरशिप। आप में से कितने सारे लोग हैं जो रील्स बनाते हैं? रेज योर हैंड्स। अरे मैं भी बनाती हूँ ना। कितने लोग बनाते हैं? सच बोलिए प्लीज, कितने लोग बनाते हैं? आप रील्स नहीं बनाते हैं? सीरियसली? अब धीरे धीरे आप मुझे कैसे पता चलेगा फिर कि मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूं? अच्छा, ट्रैवलिंग के लिए जब आप जाते हैं तो आप में से कितने लोग रील बनाते हैं? आपको एक चीज पता है, उत्तराखंड के जो पूर्व सीएम है रमेश पोखरियाल निशंक, हम लोग उनका एक कुछ हमारे स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो उनका सोशल मीडिया संभालता है, और आपको पता है उनमें से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वहाँ के जो मिनिस्ट्री ऑफ आपका टूरिज्म है उन्होंने हायर किया, फुल फ्लेज जॉब। क्यों किया है पता है? सबसे कम अटेंडेंस थी और उनकी हमारे कॉलेज में। क्यों? whenever they have a chance they would like to go। और साउथ के बच्चे थे, they have a different mindset for the tourist places। उन्होंने ऐसी जगह एक्सप्लोर की, ऐसी चीजों को एक्सप्लोर किया जो यूजुअली हम नहीं देखते हैं नॉर्थ इंडियंस। ठीक है, सो दिस इज द वन एंड ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। अगर आप कहीं जाते हैं, आपको कुछ चीज पसंद आती है, देन यू हैव टू कैप्चर इट। आप सबके पास मोबाइल है। मोजो नया जो अगर हम एनडीटीवी या और टेलीविजन चैनल्स की बात करते हैं तो आप ट्रेडिशनल कैमरा नहीं यूज कर रहे हैं लोग। पहले बड़ा फक्र माना जाता था हम लोगों को, जब मैम को भी पता होगा, हम लोगों को जब चैनल से बुलाया जाता था किसी डिस्कशन के लिए तो हम लोग बड़े खुश होकर जाते थे, चैनल में जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अब क्या कहते हैं, मैडम आप वहीं से बाइट दे दीजिए ना फोन पे, है ना, कुछ बोला है वहीं से बोल दीजिए ना मैम। आपको पता है ये कॉस्ट कटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
कि आपको अपने पूरा, कभी कभी आप देखिएगा सिर्फ एंकर की शूट होती है, सारे के सारे जो गेस्ट हैं वो अपने घर से बाइट्स दे रहे होते हैं, देखा है ना? तो मोबाइल आपके पास अगर है तो आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, बिलीव मी। इसको कितने क्रिएटिवली आप यूज करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा था स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप में स्पॉन्सरशिप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉट ऑफ मनी अर्न थ्रू सोशल मीडिया, स्पेशली फॉर दोज जस्ट स्टार्टिंग अप। आपको किसी पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ इस फील्ड में उतरना पड़ेगा। मैं आपको टिप्स भी दूंगी कुछ जो मुझे पता है और आपसे भी लूंगी जो आपको पता है। स्पॉन्सरशिप एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से आप अपने काम को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने बोला है एडवर्टाइजमेंट्स। आप देखते होंगे कई कुकरी शोज, अगर आपने देखे होंगे YouTube पे, आपने कई कुकरी शोज देखे होंगे, उसमें वो कुछ पर्टिकुलर ऑयल यूज करती हैं, जो फेमस आपके जो कुकरी शोज हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर ऑयल यूज करते हैं या कुछ स्पाइस यूज करते हैं, और उसको क्या कहते हैं, बरार का भी एक ऐड आता है ना मेरे ख्याल से, जो बताता है कि हम टाटा का रिफाइंड ऑयल या टाटा का कुछ इस तरह का। एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ऑनलाइन बात कर रही हूँ आपसे। तीसरी चीज है सेलिंग प्रोडक्ट। रील्स में जो फेमस रील्स बनाने वाले हैं या नहीं भी जो फेमस रील है, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर लिपस्टिक्स को या काजल को, इस तरह के जो बेसिक जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं ना। ये कुछ मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको। फिर है प्रमोशनल सर्विसेज। If service-based business is more up to your ally, you don't want to look past social media as a marketing channel. Marketing channel है प्रमोट, जो भी सर्विसेज प्रमोट करने का। मैं फिर से आपको ट्रैवलर्स के बारे में लेके चलती हूँ। कई बार ऐसा होता है, अभी रिसेंटली आपके जब लेक्चर के लिए मैं कुछ चीजें देख रही थी, करंट चेंजेस देख रही थी, उसमें एक टैक्सी वाले को प्रमोट किया है एक ट्रैवलर ने। मनाली के एक टैक्सी वाले हैं जिनको उन्होंने कहा है सलमान, क्योंकि वो बहुत लंबे लंबे, जैसे वो तेरेना वाली स्टाइल में बाल रखते थे ना, वो ऐसे बाल रखे हैं, और उनके बारे में बताया कि ही सो गुड इन हिज सर्विसेज, इसकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। और उसके बाद उसके कमेंट के बाद मैंने देखा कि इतना पॉपुलर हुआ है वो व्यक्ति कि उसकी पूरी की पूरी जो टैक्सी सर्विस थी वो हाइक पे आई। और ये बहुत नॉर्मल एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि शाहरुख खान ने पठान मूवी की रिलीज होने के बाद एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था। आई वुड लाइक टू शेयर दिस स्टेटमेंट विद ऑल ऑफ यू। उन्होंने कहा था, हम आखिरी पीढ़ी है सुपरस्टार्स की। क्यों? क्योंकि आने वाले सुपरस्टार्स इंटरनेट की दुनिया से लिए जाएंगे। आपको पता है इसका मतलब? एक कौन सी मूवी आई है अभी, मैं झूठी तू मक्कार, ऐसा क्या, तू झूठी मैं मक्कार, कुछ ऐसा। उसमें याद है कि स्टैंड अप कॉमेडियन था, है ना? वो कहां से मिला उसकी टीम को? कपिल शर्मा का जो शो चल रहा है इस समय, जो करंट शो चल रहा है, आप देख रहे हो सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस आ रहे हैं उनके शो में। कोई एस्टैब्लिश वो नहीं आ रहे हैं सारे। कहां से मिले वो? कहां से मिले? इंटरनेट से। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं आप क्या है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जर्नलिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। कौन है? अभी रिसेंटली एक चर्चा है रूबिका लियाकत की। क्या चर्चा है? छोड़ दिया। क्यों छोड़ा पता है? ऐसी चर्चा है कि वो अपना YouTube चैनल एस्टैब्लिश करते हैं। आपको पता है रवीश कुमार, कितने फॉलोअर्स हैं रवीश कुमार के? 6.8 मिलियन। आप बिलीव करेंगे इस चीज के लिए? एक्चुअली है। आप अगर इसके अलावा अभिसार शर्मा नाम सुना है ना? अभिसार शर्मा का नाम नहीं सुना? बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं, राइट? लंदन टॉप, 22 मिलियन फॉलोअर्स। दलित दस्तक, न्यूज क्लिक, जो ओल्डेस्ट हमारा न्यूज पोर्टल है यूट्यूब पे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैनल्स आपके सामने हैं, क्योंकि बहुत इजी नहीं है एस्टैब्लिश होना।
बट इतना टफ भी नहीं है अनलेस कि आपके पास में एक माइंड सेट है कि आप बहुत लकी है कि आप ऑलरेडी ट्रेन्ड हैं, आपको पता है कैमरा कैसे काम करता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप किसी को इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं, आपका एनालिसिस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, कैसे आप यूजर्स को देख सकते हैं, कैसे उनके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, कुछ पॉइंट्स आपके अंदर होने चाहिए। पहला, नेतृत्व, लीडरशिप। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना काम किनके साथ करना है और कैसे करना है, पहली चीज। दूसरा, न्यू थॉट्स, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप कैसे सोच सकते हैं, ये देखिए, इनको टिक करते जाइए। ये अगर आपके पास है तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप सोच सकते हैं। तीसरी चीज, डिसिप्लिन। इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि 9 to 5 जॉब बहुत डिसिप्लिन वाला जॉब होता है, बहुत टाइट शेड्यूल होता है, इसलिए हम एंटरप्रेन्योर, हम अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे, हम अपना ब्लॉग बना लेंगे, है ना, हम फेसबुक पे अपना पेज चला लेंगे, आराम से जब मन होगा तब करेंगे। नहीं, 9 to 5 है, संडे ऑफ है, सैटरडेज ऑफ है। बट बिलीव मी, अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपके लिए इनिशियली 4-5 इयर्स तक कोई भी दिन ऑफ नहीं है। जब हम अपना बिजनेस करते हैं, आपके कितने लोगों के बैकग्राउंड बिजनेस वाले हैं, पेरेंट्स कितने लोग बिजनेस करते हैं? गुड नंबर। आपने उनको कभी रिलैक्स होते हुए देखा है? बहुत रिलैक्स होके कि भाई आज छुट्टी, आज कुछ नहीं करना है, होता है ऐसा? वेरी रेयर। मुझे पता है गर्मी बहुत लग रही है, इसीलिए मैं बहुत कट शॉर्ट में हम डिस्कस करें, उसके बाद हम सिर्फ नॉर्मली, मैं इसीलिए यहाँ रुक गई, थोड़ी देर के बाद हम लोग आपको शेयर कर देंगे। रिस्क लेने की ताकत, अगर आप में रिस्क लेने की ताकत है तो आप इस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। रिस्क कैसे लिया जा सकता है बताओ? सामने से गाड़ी आ रही है, कूद जाना है, ऐसे रिस्क। Not only money, sweetheart, it's related to money and time also. आप अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा टाइम बिना किसी एश्योरेंस के अगर स्पेंड करने के लिए तैयार है तो ये बिजनेस, ये फील्ड आपके लिए है और अभी आप कर सकते हैं ऐसा। कितने लोगों को लगता है कि वो कुछ अलग कर सकते हैं 9 to 5 जॉब के अलावा? कितने लोगों को लगता है कि वो एक बड़ा YouTube चैनल एस्टैब्लिश कर सकते हैं, न्यूज़ बेस्ड YouTube चैनल एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं? कितनों को लगता है? लगता भी नहीं है। अच्छा, कितने लोग ट्रेडिशनल जॉब करना चाहते हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? शादी करनी है? तो ये भी फुल टाइम जॉब है। नहीं ना कि यही सारा कुछ सेटल है, ऐसा तो नहीं है ना। सो देयर आर स्पेशली, ये याद रखना, देखो मैं अपनी बेटी को भी ये सलाह देती हूँ और तुमको भी ये चीज़ कहती हूँ, चाहे वो लड़की हो और चाहे वो लड़का हो, अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो आपकी बात सुनी जाएगी और आप कोई भी डिसीजन लेंगे। स्पेशली मैं पर्सनल लाइफ के बारे में, आई एम नॉट सपोज टू टॉक टू यू अबाउट इट, बट एक्चुअली पर्सनल डिसीजंस भी तभी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, है ना, इंडिपेंडेंट है। कौन लड़की है भाई जो बिना किसी कमाने वाले से शादी करने को तैयार है कोई? अब तो लड़के भी तैयार नहीं है। लड़के, कौन लड़के तैयार है बिना कमाने वाली लड़की से शादी करने के? है ना, एक्सेप्ट उसका हाथ में तो उठाओ जबरदस्ती, तो ठीक है। कम टू द पॉइंट, हम बात कर रहे हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब हमेशा याद रखना, आप जब भी जिंदगी में वीक से हट के कुछ करने का प्लान करते हैं तो आपको आलोचनाओं के लिए तैयार रहना है, आपको बुराई सुनने के लिए, आपको भला बुरा सुनने के लिए। और सबसे पहला कौन कहेगा? मम्मी, है ना, बीएड करके जॉब कर लो, सबसे आसान, है ना। ये ऐसा नहीं है कि आप सुन रहे हैं, बिलीव मी, आप
आज की जनरेशन के बहादुर बच्चों में से हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को छोड़ के वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है, वो भी मीडिया। आई मस्ट से कि आप उन बच्चों में से हैं जिनके अंदर अनकॉन्शियसली एक फ्री स्पिरिट है, डिसीजन मेकिंग है। दिस इज नॉट इजी जॉब इवन फॉर मी। मैंने 2001 में जॉब पढ़ाना शुरू कर दिया था जब मैं जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट की नेटो सीजन में मेरा क्वालिफाइड हुआ था, और तब से लेके अभी तक का जो मेरा सफर है उसमें मुझे कहीं भी एक भी दिन जॉब में जाते हुए रिग्रेट नहीं हुआ। कभी भी मुझे ये नहीं लगा यार नहीं जाना, आज घर पे रहना है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये काम मेरी पसंद का काम है। बिलीव मी, मेरे एक सर थे स्कूल में, वो कहते थे कि अगर फांसी भी लगाओ ना तो अपनी रस्सी अपनी पसंद की चूज करके लगा। तो काम वो चूज करो जिसके लिए मन राजी हो, और जिसके लिए मन राजी होगा वो आसान नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि मन वही जाएगा जो मुश्किल हो, है ना। चाहतों का काफिला अक्सर वहां से गुजरता है जहां रास्ते नहीं। चाहते ऐसी ही होती है, जो सपने होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, टफ होते हैं। इसलिए आपको लोगों की क्रिटिसिज्म के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। जब आप एक 9 to 5 जॉब छोड़ के एक ऐसा जॉब चूज करते हैं जिसमें आपके पास में रिस्क के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। दूसरी बात, आपको रोज काम करने के लिए तैयार रहना होगा। आप अगर पोस्ट करते हैं कोई कुछ, अगर आप कुछ ट्वीट करते हैं, इट शुड बी इन अ रेगुलर बेसिस। आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैं अभी डिस्कस करूंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन ये मैं कुछ बेसिक चीजें बता रही हूँ। रोज काम करना है, कंटिन्यूटी में काम करना है, लेकिन ऐसे काम नहीं कर रहे कि आंख बंद कर रहे हो रोज टाइप कर रहे हो। ये भी दूसरों का काम भी चेक करते रहो कि वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कौन सी किसकी व्यूअरशिप ज्यादा है, कौन सा कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं, कौन सा कंटेंट लोग नकार रहे हैं। इसका मतलब ये मत समझो कि आपको भीड़ का एक हिस्सा बनना है। आपकी आइडियोलॉजी, आपकी आइडेंटिटी अपनी होनी चाहिए, बट एनालिसिस जरूर होना चाहिए। आपको अपने व्यूअर्स का, जिसको हम कहते हैं ना R&D, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको फोकस करना है, राइट। फिर अब बात करते हैं हम, मैंने आपको बताया था कि लगातार कुछ अलग काम आपको करते रहना है। सर बेटा प्लीज। हाँ, हम कुछ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करें। हमारे पास बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो यूएस के हैं, उनमें से मैं एक कहानी तुमको सुनाती हूँ। इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं तुम्हें एक उसकी बहुत मजा आएगा आपको उनको सुन के, क्योंकि मुझे इन पर्सन ये बहुत पसंद आते हैं। इनका नाम है ब्रैंडन स्टैनटोन। हॉनी का नाम सुना है? ह्यूमन ऑफ न्यूयॉर्क। चेक करना, मैं आपको सारे ये मैं पीपीटी मैन को हैंडओवर करके जाऊंगी, उसमें सारे लिंक्स हैं, आप उन्हें जरूर खोलना। उससे आपको कोई ना कोई आइडिया जरूर आएगा कि आप खुद बैठे बैठे 2 साल है आपके पास, 1 साल है आपके पास इस समय ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, उसी बीच आप कुछ अपनी पसंद की चीज डाल दो। जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी चीज को लेके कोई काम करें। इंस्टाग्राम अगर आप पेज बनाते हो तो जरूरी नहीं है कि आप किसी, आपको क्रोशिया अच्छा आता है, यूजुअली अब ये सब आता नहीं है लोगों को, कुकिंग और ये सारी चीजें, बट आपको कुछ भी पसंद है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत रिलीजियस हैं, आप अपने रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। जैसे टीका क्यों लगाया जाता है, किस किस तरह के टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप फैशन से रिलेटेड किन चीज़ों का आपको ज़्यादा सेंस है तो आप फैशन से रिलेटेड, कलर्स से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे ऑप्शन से हम डिस्कस करेंगे। आपको कहीं ना कहीं कुछ अपने नेचर का क्लिक जरूर करेगा। मैं बात कर रही थी ब्रैंडन स्टैनटोन की, बहुत अच्छी जॉब में थी। 2010 में जॉब चली गई, रहने को घर नहीं था लेकिन मोबाइल था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को, न्यूयॉर्क में रहते थे, लोगों को क्लिक करना शुरू किया, फोटोज निकालना शुरू किया। कुछ को पूछ के निकाला, कुछ को बिना पूछे निकाला, ठीक है, और उसको फेसबुक पे डालना।
और कैसे निकालते थे ना, सड़क चलते हुए लोगों के फोटोग्राफ्स, स्ट्रीट फोटोग्राफी। जैसे आप फोटो वॉक करते हैं तो आप सारी चीजों को कैप्चर करते हैं, वैसे ही स्ट्रीट फोटोग्राफी। और धीरे धीरे उनका जो रिफ्लेक्शन था, पैशनेट जो काम करते थे, उनका पैशन रिफ्लेक्शन था, वो बहुत अच्छे से आपके फेसबुक पे छाने लगा। लोग पसंद करने लगे उनका काम, और इस हद तक पसंद करने लगे कि फेसबुक पर मोर देन 12 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। और इस वजह से उनको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स मिलना शुरू हुए, बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स मिलना शुरू हुई, और उन्होंने एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टैब्लिश किया। और इससे खूबसूरत बात ये हुई कि उनकी जितनी भी उन्होंने फेसबुक पेज से जितनी भी अर्निंग की वो चैरिटी के लिए यूज की, और खुद को उन्होंने किताबों की रॉयल्टी से सर्वाइव किया। आप सोच सकते हैं ये चीज क्यों किया ऐसा? जो खुद कभी सड़कों पे रहा होगा ना, जिसने कहते हैं ना कि संवेदनशील बनाते हैं हमें मुश्किलात परेशानियां, तो वो उसकी वजह से। तो मुझे ये ओवरऑल इनकी ये कहानी बहुत पसंद आई। मैं एक एग्जांपल आपको दे रही थी। फिर आपके जैक गोइंस भी हैं, एक ब्लॉगर है बहुत फेमस और राइटर हैं, जिन्होंने बहुत सारे काम किए। और हम बात करते हैं अपने इंडियन लोगों की, हम ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। पहला नाम किसका है? ये बाइजू। नाम क्या है इनका? बाइजू रविंद्रन। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी बाइजूस के नोट्स नहीं रेफर किए हैं? कितने लोगों ने किए हैं? हैंड्स अप। मैंने भी किए हैं यार, बहुत एप्रोप्रिएट नोट्स हैं, ठीक है। और आप विश्वास करेंगे 3 साल के अंदर अंदर इनको लाखों बच्चों ने इन्हें पढ़ा, इनको सब्सक्राइब किया, और उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। 2015 में इन्होंने काम किया। विद इन 2 months it reached million of students who downloaded this app. आज भी there are many things not only about this Byju's, but उनको बेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट अवार्ड मिला है 2016 में गूगल प्ले स्टोर का। और इनकी जो ये ऐप है, ये सिर्फ एक ये ऐप नहीं है, बल्कि ये बाइजूस की यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश करने वाले हैं। देयर आर मेनी मोर थिंग्स। देन दूसरी है हमारी श्रद्धा शर्मा। इन्होंने इससे भी बड़ा खेल कर लिया। इन्होंने क्या किया? खुद एंटरप्रेन्योर नहीं है, कुछ अलग से काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? जो कर रहे हैं ना काम, उनकी स्टोरीज शेयर करना शुरू किया। है मजेदार चीज। मतलब मैं इंडिविजुअली कुछ नहीं कर रही हूँ, कोई बिजनेस नहीं कर रही हूँ, ना ऑनलाइन कुछ काम कर रही हूँ, ना मैं सोशल मीडिया पे कुछ बिजनेस कर रही हूँ, एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, बल्कि मैंने क्या किया? श्रद्धा इज अ वेरी वेल नोन डिजिटल एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, एंड शी इज द फाउंडर ऑफ चीफ एडिटर ऑफ yourstory.com। yourstory.com जरूर देखना, इसमें तुम्हें बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आप लिखते जाइए yourstory.com, ठीक है। आपको मौका मिले आप देखेगा। इसमें उन्होंने डिस्कस किन किन लोगों के बारे में डिस्कस किया? चेंज मेकर्स के बारे में, फंडिंग एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया, जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में डिस्कस किया। और बहुत जल्दी ही 20,000 स्टोरीज से ज़्यादा स्टोरीज हैं इनकी yourstory.com में, और लगभग 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। आप ये एक बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल है एंटरप्रेन्योरशिप का। Then next, yes, Ritesh Agarwal. Sorry, but so guys, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और ओयो ऑब्वियसली डी फेम है, लेकिन एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है ओयो रूम्स। पता है पूरे भारत का 3 महीने तक इन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, लोगों से मिले, छोटे छोटे होटल्स के साथ टाई अप किया, और यू कैन बिलीव इतनी बड़ी एक ओयो चेन के बावजूद इनका अपना एक भी होटल नहीं, सिर्फ दूसरों के होटल्स के साथ में मिलके एक प्लेटफॉर्म दिया जो ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको होटल बुकिंग और सस्ते दामों पे होटल बुकिंग के लिए, स्पेशली फॉर जो स्टूडेंट्स हैं या जो बहुत ट्रैवलिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको फोकस में करते हुए। देन
विजय शेखर शर्मा। कितने लोग के पास पेटीएम है? मेरी केवाईसी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ मेरे पास नहीं है, बाकी सबके पास है। ठीक है, कितने लोगों के पास पेटीएम है? पेटीएम इज रियली यूजफुल ना। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, कभी सोचा था कि एक मोची भैया भी आपसे 50 रुपए के लिए स्कैनर दिखा देंगे? सोचा था? मम्मी 10 रुपए का धनिया जब देती है तो वो फोन पे दिखा देता है, मैडम इस पे दे दीजिए। सोचा था? एक्चुअली नहीं सोचा था यार। कब सोचा था बताइए? जब ये मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ डिजिटल इंडिया का, तो मैं भी उनमें से शामिल थी जिसको डाउट था कि ये सक्सेसफुल हो सकता है इंडिया में। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोन ने कई चीजें मुश्किल की हैं, तो बहुत सारी चीजें आसान भी की। और इसकी वजह से पेटीएम को, चूंकि प्रीवियसली हम किस पे डिपेंड थे, हम फॉरेन की एप्लीकेशंस पे डिपेंड करते थे, बट ये एप्लीकेशन, डेवलपमेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन itself a beautiful and very important example of digital entrepreneurship। जैसा कि इनको विजय शेखर जी की न सिर्फ पेटीएम एप्लीकेशन है बल्कि बैंक भी है, पेटीएम बैंक भी है। देन अब हम बात करते हैं बैंक जी, आगे जी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डिस्कशन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास में, जिनको अगर आप देखते हैं, जैसे देयर इज अ वेरी फर्स्ट इज यूट्यूबर्स। अगर आप यूट्यूबर्स का ये वेबसाइट गैरी वी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी तरीके से हम यूट्यूब को बिजनेस मॉडल की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब नहीं है जिसमें आपको पैसे ना मिले। और आपको पता है, जब आप कोई यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो उसकी हिट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। 2014 में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत रेनाउंड जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने 2014 में एक छोटा सा यूट्यूब चैनल खोला, मूवमेंट विद रुद्रा, और उसमें उन्होंने पूरे भारत के 4-5 मुख्यमंत्री और जितने भी रेनाउंड लोग हैं उनके इंटरव्यूज दिखाए। और उनके थ्रू मुझे पता चला कि जो हिट्स हैं वो ऐसे नहीं होती है कि अगर आपको बांग्लादेश से 5 हिट मिल रहे हैं या 5 सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं, वो इक्विवेलेंट नहीं है यूरोप के 5 सब्सक्रिप्शन के। ये भी एक डिफरेंशिएशन होता है कि कहाँ से हिट्स मिलती हैं, तो वहाँ का वेटेज ज़्यादा होता है। और एक पर्टिकुलर हिट, पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के बाद, पर्टिकुलर रीच के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट मिलना, ये तो सबको पता है ना, एडवर्टाइजमेंट मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया मर्चेंट, ये भी अगर आप सेकंड देखें तो इसके भी लिंक है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इजीएस्ट चीज है। हम में से ऐसा कोई है जो किसी दूसरे को समझा नहीं सकता? हम में से कोई ऐसा है जो दूसरे को समझा नहीं सकता? ब्रेक ऑफ हो जाए, डिच कर जाए, है ना? तो क्या होता है, दोस्त दूसरे से कहता है छोड़ो यार, अच्छा हुआ वो तुम्हारे लिए नहीं था, है ना? रील्स में आता है बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं ना, वहां मत रुकिए जहां आपकी कदर ना हो, ठीक है? या ऐसा कोई भी व्यक्ति इतना बिजी नहीं होता कि वो, अगर वो आपको एक मैसेज ना करे, अगर वो आपको कॉल ना, ये आते हैं ना ये सारी चीजें। इट्स वेरी नेचुरल, आपकी एज में ये चीजें बिल्कुल नेचुरल हो सकता है। मैं मुस्कुरा रही हूँ खड़े होकर क्योंकि मैं उस स्टेज से आ भी गई हूँ, बट जो प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत बड़ी है। मेरे लिए हो सकता है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो, या मुझे लगे ये मैच्योर है। हम भी उसी स्टेज से खड़े हुए हैं, हमारी हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस थोड़ी बहुत अलग है। हम में से हर व्यक्ति दूसरे को मोटिवेट कर सकता है, और जब हमें जरूरत होती है तो हमें कोई और मोटिवेट करता है। ऐसा होता है ना? होता है नहीं होता है? अच्छा, आप में से ऐसा कोई है जिसने कभी किसी को कुछ समझाइश ना दी हो, किसी को मोटिवेट ना किया हो, किसी को संभाला ना हो, किसी दोस्त को, छोटे भाई बहन को,
मम्मी को भी समझाया हो, कभी पापा से झगड़ा हो रहा है तो आप अपने लिए टाइम निकाला कीजिए थोड़ा। ऐसा बोला है गर्ल्स? नहीं बोला है क्या? रेज योर हैंड्स। मैंने तो बोला है। मेरे पापा बहुत डोमिनेट करते थे, तो मैंने बोला क्या अपनी लाइफ में जियो यार, आप क्या पूरे टाइम घर घर घर। हमने हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे दूसरे को मोटिवेट किया है, और अगर आपने एक बार भी किया है और सामने वाला मोटिवेट हुआ है, देन आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। क्या हुआ? इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? अच्छा, आप सॉरी बीजेएमसी फर्स्ट सेमेस्टर, आपकी क्लास में सबसे ज्यादा कौन समझाता है दूसरों को? नाम बताओ, नाम बताओ। सेकंड वाले बता दो फिर। कौन है आपकी क्लास का मोटिवेशनल गुरु? नाम लो जोर से। ये छुपा रहे जो, ये जो शक्ल छुपा रहे हैं अपना उससे। प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। फोर्थ सेमेस्टर में आप खड़े हो जाओ। और सेकंड में कौन था? खड़े हो जाओ नितेश। Please stand up. You, please. Please, please, please. अरे काकू। शिवेंद्र कौन है? It's such a beautiful gesture. I love this gesture. Thank you so much कि अभी भी आप लोगों में इतना सेंस ऑफ ह्यूमर है। इतने कंपटीशन के युग में, टाइम में भी आप अगर एक दूसरे के लिए वक्त निकाल कर उसे समझा रहे हैं। हैट्स ऑफ गाइस, थैंक यू। प्लीज। तो आप देख लीजिए, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ऑलरेडी 3 एग्जांपल्स हैं, नहीं है क्या? आपको भी कभी कभी पता नहीं होता कि आपके अंदर क्या है, और आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है। पता, कई बार ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है और हमें पता चलता है यार ये भी हमारे अंदर क्वालिटी है। सो कम टू द पॉइंट। just hold on. अब हम बात करते हैं एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम कभी भूल नहीं सकते हैं, वो ये है कि द लाइफ ब्लड ऑफ सोशल मीडिया इज कंटेंट। जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो उसमें 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चाहे आप YouTube चैनल बनाएं, चाहे आप Instagram अकाउंट बनाएं, Facebook पेज बनाएं। मैं सोशल मीडिया को इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि इनिशियली आपके लिए ये सबसे इजीएस्ट प्लेटफॉर्म होगा। पहली चीज कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? कौन बताएगा? और कौन बताएगा कंटेंट क्या है? ठीक है, और कौन बताएगा कंटेंट क्या है? बस एक सेकंड, आप आगे। हाँ ठीक है। कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट। आज के टाइम में जितना भी मिनिस्ट्री का काम है, मैं इसलिए गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट की बात हम लास्ट स्टेज पे हैं अपने। मुझे पता है कि आपका पेशेंस खत्म हो रहा है, एक्चुअली मेरा भी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं लास्ट स्टेज पे अपनी कि जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, करंट बाजार किस चीज का है। जब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम इतने सारे डिस्कशंस करते हैं,
जनरल बातें करते हैं, मीडिया से रिलेटेड बात करते हैं, हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, कम्युनिकेशन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। वो ये कि ये समय अनुभव का समय नहीं है, ये समय जोश का समय। आज अगर कोई आपको एक्सपीरियंस मांगता है आपसे न्यू मीडिया के जॉब में, तो वो समय के हिसाब से नहीं चल रहा है, क्योंकि जो भी काम है, मैं मिनिस्ट्रीज की बात कर रही हूँ, सिर्फ मिनिस्ट्रीज की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज भी हैं, वो अपनी ब्रांड इमेज के लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ब्रांड इमेज के लिए काम कर रहे हैं, और ब्रांडिंग के लिए सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। अगर आप कंटेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, आप मोर देन सफिशिएंट है अपनी टूल्स। और मैं कभी ये नहीं कहती, मैं बच्चों से ये जरूर कहती हूँ प्रैक्टिकली कि आपको अवेयर होना चाहिए, करेंट नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अपना काम अच्छा कर सकें, बट इसके अलावा आपको फोकस भी होना चाहिए। मान लीजिए आप नेल आर्ट पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, गर्ल्स को पता होगा, बॉयज को भी पता होगा क्योंकि बॉयज देखते भी हैं, ठीक है। नेल आर्ट के बारे में अगर आप काम करना चाहते हैं या कोई पेज एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या कुछ भी, आपको बाकी चीजों के बारे में तो पता होना चाहिए, बट नेल आर्ट के बारे में आपको बहुत स्ट्रांगली पता होना चाहिए। अब ये समय सिलेक्शन का है, फोकस का टाइम है। ये जब आप जॉब क्राइटेरिया चेक करेंगे ना, ये पहले कहा जाता था ना, हर चीज थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, हर चीज, मैं आज भी ये कहती हूँ कि हर चीज थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। आपको ग्राफिक्स भी पता होना चाहिए, बेसिक पोस्टर्स आपको पता होना चाहिए कि इलस्ट्रेटर पे हमें कैसे काम करना है, पेज मेकर्स पे कैसे काम करना है, आपको एडिटिंग आनी चाहिए, काम चलाओ, आपको फोटोग्राफी भी आनी चाहिए, आपको थोड़ा सा लिखना भी आना चाहिए। बट जिस फील्ड को आप चूज करना चाहते हैं, जिस पे आप करियर बनाना चाहते हैं, उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, जॉब के लिए बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की तरफ धीरे धीरे देखना कम होता जा रहा है, और अब धीरे धीरे ये वो मीडिया हाउसेस, सॉरी आई एम सो सॉरी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप कराते हैं बच्चों को, वेरी सॉरी, कहने को बहुत बड़े बड़े टर्नओवर्स हैं, और एक बच्चे को ये ट्रैवलिंग अलाउंस भी देना नहीं चाहते हैं इंटर्नशिप में। एक महीने वो बच्चा अपना पैसा लगा के जाएगा, अपना खाना खाएगा, वापस आएगा, काम लेके आएगा घर के लिए और वहाँ भी काम करेगा। तो ऐसे मीडिया हाउसेस के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर आप अंजना ओम कश्यप को जानते हैं तो आपको अजय नागर को भी जानना चाहिए, आपको दिलराज सिंह को भी जानना चाहिए, आपको आशीष चिंचलानी को भी जानना चाहिए, आपको भवन बाम को भी जानना चाहिए, आपको संदीप माहेश्वरी के बारे में भी बताना चाहिए, आपको निशा मधुलिका, गर्ल्स बॉयज, मम्मी क्या करती है, सारे दिन खाना बनाती रहती है, राइट? हम कहते हैं ऐसा, हमारी मम्मी क्या करती है, कुछ नहीं करती है। अगर वो होम मेकर है तो क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, कुछ नहीं करती है। माय गॉड, कितना खतरनाक स्टेटमेंट है ये, कि अगर मम्मी होम मेकर है तो वो क्या करती है, वो कुछ नहीं करती है। ये निशा मधुलिका की बायोग्राफी पढ़ना भी, खाना बनाती है, और 13.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, मुझसे 5 साल बड़ी होगी हालांकि। उस एज में उन्होंने अपना करियर बनाया जब हम अपनी करियर अबाउट टू पीक है। आप सोच रहे हैं यानी कितनी मजेदार चीजें आप देखिए ना, दादियां खाना बना रही हैं, गाँव में कितने इंटीरियर एरियाज में लोग चूल्हे पे वो बना रहे हैं, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, उल्टा सीधा शूट में करते हैं, शूट धीरे धीरे फाइन होती जाते हैं, शूट उनके धीरे धीरे उनके वीडियोस बहुत परफेक्ट होते जाते हैं। वो पुराने चूल्हे, पुराने बर्तन यूज हो रहे हैं खाने में, गाँव में, पहाड़ी इलाकों में, हर एक अगर आप इसको तमीज से यूज करना सीख गए ना, इसको अगर आपने थोड़ी भी ईमानदारी से इस्तेमाल किया, तो ये किसी को भी बेरोजगार नहीं करेगा। दैट इज फॉर श्योर। यही आज के इस पूरे वर्कशॉप का जिस्ट है। मैं बार बार सोशल मीडिया के एंटरप्रेन्योरशिप पे इसलिए आपको फोकस कर रही हूँ, क्योंकि आज की एज में आप एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, किसी प्लेटफॉर्म को खरीदने के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, जिस पे आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं। MIT की बहुत लिमिटेड
क्लास में हैं, ये सारी चीजें आपके हक में हैं, राइट? बस अब मेरा काम खत्म, अब तुम बताओ। अब मुझे बताओ कि कौन क्या करेगा, थोड़ा सा। और प्लीज डोंट बी हेजिटेट। अगर एक छोटा सा भी सपना है ना कुछ अपना काम करने का, पहला स्टेप यही है कि तुम सबके सामने उसे एक्सेप्ट करना सीखो। अगर तुमने अपने क्लासमेट्स, अपने जूनियर्स या अपने सीनियर्स के सामने एक बार खड़े होकर बोला यस मैम मैं कुकरी शो बनाना चाहता हूँ, या किसी लड़की ने कहा मैं हेयर स्टाइलिश बन के अपना वो करना चाहती हूँ, चैनल बनाना चाहती हूँ, अगर आपने एक्सेप्ट किया यहाँ खड़े होकर अपने सपने को, तो आप मान के चलिए कि 50% जन्नत बची। तो फर्स्ट लाइन से फटाफट मुझे बताना शुरू करो। I just have 5 other minutes. Yes, हीरो फोन छोड़ दो भाई, बताइए क्या करना चाहते हो फटाफट से। इतने यार तुम लोग इतने नाजुक हो, फटाफट खड़े हो बताओ। मैं एक्टिंग में जाना है। So nice. उसके लिए कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ काम करोगे? अपने वीडियोस बनाते हो? नो मैं वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन जैसे शूट्स होते हैं तो उनमें जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। एनएसडी की जो वर्कशॉप्स होती हैं वो अटेंड करता हूँ, ये सब। आप इसके अपने भी छोटे छोटे वीडियोस, कुछ सीन आप जैसे हम कुछ सीन्स को दोबारा बनाते हैं ना, वैसे भी आप बना के डाल सकते हो। आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा उससे। जब आप कहीं जाओगे और आप बताओगे ना कि ये काम किया है मैंने, तो ये आपका, क्योंकि अब नॉर्मली आप ई पोर्टफोलियो भी लेके जाते हैं ना, अब हम कहाँ यूज करते हैं पेपर्स। आप नेक्स्ट जल्दी जल्दी ना प्लीज, स्किप मत करना। मेरा एडिटिंग में वेरी नाइस। आप मैम एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट सिनेमैटोग्राफी में है। सिनेमैटोग्राफी आपने जो कुछ भी सीखा है वो भी आप यूज कर सकते हो। जैसे जैसे कई बार मैंने देखा है, कई क्लासेस में कई इस तरह के भी वीडियोस मैंने देखे हैं कि बच्चे आज कुछ सीख के आए, टूल्स को क्योंकि मैंने एक चीज और भी देखी है, आप तो लकी है कि आपको मौका मिला है, आप इंस्टीट्यूट में आके पढ़ रहे हैं। कई बच्चे जिनको मौका नहीं मिलता है अपने पैशन को प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करने का, वो यूट्यूब से सीखते हैं। और यूट्यूब पे कौन सिखाता है? हम आप ही तो सिखाते हैं, जो लर्न कर रहे हैं वही सिखाते हैं। यस प्लीज। सोशल मीडिया हैंडलिंग किसे फॉलो करते हो आप सोशल मीडिया पे? कोई बात नहीं, अच्छा पैशन है आपका। प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी। मैम मुझे भी मूवी आप मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे ऑडियो किसी का अच्छा है, आवाज़ अच्छी है, तो वो भी अपनी डायलॉग डिलीवरी देते हैं ना, उसमें बनाते हैं इस तरह की चीज़ें। ये आपके ना अभी से कुछ चीज़ें आप बनाना शुरू करेंगे, आगे चल के आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होगा। प्लीज गो अहेड। I have to become a content writer and work in major football organizations like ESPN and Sky. वेरी नाइस। यस, सिनेमेटोग्राफी कौन पढ़ाता है भाई? विशाल सर? हाँ, माधव सर? आप लेट आए माधव सर, मैं तब आ रहा हूँ और जा रहा हूँ। तभी मैंने आपको अभी देखा। There's a shoot going on, so that's why. प्लीज और कौन है? Ma'am, I want to work in public relations and marketing. वेरी नाइस। I like everything related to communication. मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पूछ रही हूँ, आपका कुछ ऐसा सपना है जो आप अपना काम करना चाहते हैं? अभी शायद इट इज टू अर्ली टू आस्क, आई थिंक, है ना? लेकिन आप सोचना शुरू कीजिए, जब तक आप देखो जिसको बोलना नहीं है उसने सबसे पहले तो यस कहा है। और Ma'am, as per entrepreneurship, I want to establish a brand of related to Uttarakhandi product like traditional product of Uttarakhand. लाइक नून एक्सेट्रा। हाँ, वेरी नाइस। यस, मुझे एक्चुअली इवेंट
ही वास्ट फील्ड है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. बट हेलो, My interest is film direction, film writing and स्क्रिप्ट, film direction. मुझे लगता है जिस तरह का ओवरऑल इंटरेस्ट है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में लोगों का, बच्चों का, उसमें आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बिना किसी उसके पैसा लगाए, बिना किसी मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट के आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है. और सेशन मैं करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि इट्स मोर देन इनफ फॉर अस. मगर एक चीज़ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ. एक कोविड के टाइम पे when I got the opportunity to watch so many web series, there was a lot of time. I started seeing cinema and these stories in a very different perspective. अब मुझे लगता है कि कोई मेरे को ऐसा मिले जिनके साथ मैं वो डिस्कस कर सकूँ. And then I make it a point to watch at least one film every day. वो कोई भी language की हो, उसमें subtitling हो और हिंदी लग जाए तो ज़्यादा अच्छी लगती है. And while I was teaching sport journalism students about blogging, I thought of starting my own blog on movie reviews or something. Just for the sake of, you know, documenting whatever I would like to add on Thank you. one point also, Pramod sir. It's very genuine and very realistic approach you have. Actually, one of my friend was a journalist, and because of COVID issues, उसके पास job नहीं थी, तो उसने reviews लिखना शुरू किया. And those reviews are very much popular nowadays. वो freelancer काम कर रही है मैम, and I'm damn sure उसकी वजह से मुझे लगभग हर शो पहला उसके साथ जाने का मौका मिलता है. और she is well established nowadays. तो कोविड एक ऐसी चीज़ है जिसको कई लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी इस्तेमाल किया. इट इज़ अप टू अस. दूसरी बात, जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का सिनेमेटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो आई मस्ट से आप छोटे करंट इश्यूज को लेके छोटे वीडियोस बना सकते हैं. मैं करंट इशू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा कॉमनली यूटिलाइज कर सकते हो आप उनको. लगातार कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लगातार गवर्नमेंट भी लगातार इस तरह के वीडियोस चाहती है छोटे, और आप स्टूडेंट हैं, आपकी बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सेप्ट होंगी चीज़ें, राइट. तो लास्ट पे मैं सारी चीज़ों को, रितिका 2 मिनट्स प्लीज बैठ जाओ. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सारे अपने ही लोग दिख रहे हैं मुझे आसपास. एंड यू आर सो लकी, आपके पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं. मैं अपना सेशन कवर कर रही हूँ. ये बहुत इनफॉर्मल सेशन था, और मैंने आपको पहले भी बोला था एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट लाइक कि मैं कुछ आपको पढ़ाऊँ, कुछ आपको बताऊँ और आप उससे सीखें. दिस इज जस्ट टू प्रोवोक योर सेंसेस. ये सिर्फ एक मोटिवेशनल सेशन होता है जो आपको सिर्फ ये बताता है कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आपको अपने आप के बारे में जानने के लिए, अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए, ब्रश अप करने के लिए, और कुछ ऐसा करने के लिए जिसमें आपको सैलरी चेक का वेट ना करना पड़े, आप चेक साइन करके दो. ठीक है. सो दिस इज ब्यूटीफुल सेशन विद यू. आई लव टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू. आई एम सो हैप्पी. इतनी गर्मी के बाद भी, इतने पसीने होने के बाद भी आप एनी हाउ एक मैनेज करके रखे. आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू. आई कैन अंडरस्टैंड, मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, एंड यू आर सो डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट. ऑल द बेस्ट. आई लव यू ऑल. I would now like to request Dr. Swati Jain, Head of Mentoring Cell, to give formal vote of thanks, and feedback form will be shared. You have to fill it within 15 minutes to ensure final attendance. Thank you so much. शायद नाम सुन लिया होगा. सर, डॉक्टर स्वाति. 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना होगा सबको. मैं ना ऋतु मैम से भी ज़्यादा खूंखार हूँ. खूंखार इन द सेंस कि मैं तुम्हारा टेंशन दूर करने जाना चाहिए. बीच में क्वेश्चन पूछ रही थी, बताओ सॉर्ट ऑफ. So 2 मिनट के लिए तो मेरी बात सुननी पड़ेगी. So if you most of you do not know me, I'm Dr. Swati and heading the mentoring cell. कुछ एक्टिविटीज हमने करी है रिसेंटली, तो शायद तुम्हें पता लग जाएगा इवेंचुअली. Now one very good thing. मैंने पहली बार किसी स्पीकर को ये कहते सुना है that mobile is a boon. अभी तक जितने लोग बोलते हैं वो सब यही कहते हैं कि mobile is a boon. You understand boon and bane? So there is first person who is saying that mobile is a boon in the sense कि आप मोबाइल से बहुत कुछ कर सकते हो, and it has opened an entire world for all of you.
पुरानी मूवी है टुमारो नेवर डाइज, जेम्स बॉन्ड, कोई जेम्स बॉन्ड के शौकीन है? देखिए बॉन्ड की पुरानी है थोड़ी, तुम्हारे समय से पहले की है, 1990, मुझे इसलिए पता है कि मेरे टाइम की है। नाउ दिस वाज वन ऑफ द मूवीज जिसने ये बताया दैट हाउ डज मीडिया और न्यूज़ मैनेजेस द एंटायर वर्ल्ड। हेलो हीरो, तुम इन्फ्लुएंसर हो पर अभी मैं हूँ, मैं तो फोर्स इन्फ्लुएंसर हूँ यार, ठीक है। सो दिस मूवी टोल्ड कि आपका जो मीडिया है ना, हाउ डज दैट मोबिलाइज द एंटायर वर्ल्ड। टुमारो नेवर डाइज, दे कुड क्रिएट न्यूज़ और वो उसी हिसाब से उसको मैनिपुलेट करते थे, ठीक है। दैट वाज द विलन वाज अ मीडिया पर्सन, बट देन एक्चुअली स्पीकिंग मीडिया हैज़ ह्यूज इम्पैक्ट, इट हैज़ ह्यूज पावर। और आज की डेट में तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो गई है, मैम ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। फिजिक्स वाला का नाम सुना है ना सबने? A person who is entirely created by social media. You know that ना? रोहित सुखीजा, देखिए नया है, देखो मैम ने इतने सारे नाम लिए, इतने सारे लिंक्स भी दिए हैं। They are the people who are doing very small things in life, making their names. जब आप कुछ भी करते हो ना, there is somebody who will grasp the opportunity. आपके 4 रील्स पॉपुलर होंगे, 5वें दिन आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। बट देन इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट आर यू पैशनेट। हाँ जी, ऑन दिस साइड चेक शर्ट, क्या बताया मैंने? हाँ मैंने बोला, मैंने ऋतुवन से भी ज़्यादा ये तो प्यार से क्वेश्चन पूछ रही थी, मैं तो स्ट्रॉल वाला खूब भी जाती हूँ, ठीक है। तो बताओ, सी दुनिया में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उसे कैसे ग्रैब करोगे ये आपके ऊपर। और सोशल मीडिया आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पर आप कुछ भी करते हो, अगर वो क्लिक कर गया, बट वो कुछ भी जो चीज़ है ना, दैट हैज़ टू बी यूनिक, और वो एंटरप्रेन्योरशिप के काम करती है। आपका आइडिया कितना यूनिक है, आप कितनी यूनिक चीज़ कर पाते हो। एंड देन वी हैव द ऑडियंस। मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिनको मैं बीच में टोक भी रही थी, जो रील्स में लगे हुए थे। सो एक्चुअली रील्स बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है, पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। Am I right मैम? दे आर अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन। मेरे ख्याल से जितना कंटेंट इस समय इंटरनेट पर मौजूद है, अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा दें तो वो कंटेंट पूरा नहीं देख पाएंगे। फाइन, एंड यू पीपल आर चेक शर्ट एंड चेक वुमेन, दोनों लोग, दोनों चेक शर्ट पहने बैठे और दोनों को क्या चलो एनीवे। सो द पॉइंट इज एज हाईलाइटेड बाय मैम, you belong to that area, that domain, जहाँ पर कि आपके पास नॉलेज है उस फील्ड की और आप उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। पर यूटिलाइज करने के लिए यहाँ सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं रील्स देखो, खूब सारी रील्स देखो, पर आइडेंटिफाई करो विच रील इज सेलिंग, कौन सा कॉन्सेप्ट सेल हो रहा है। पैसा तो सबको कमाना है, कोई ऐसा है जो बहुत बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट बनना चाहता है, सब कुछ पैसे त्याग करके हिमालय पे जाना चाहता है, एसी सबको चाहिए, पैसा कमाना है, या तो नौकरी या बिजनेस। नौकरी या धंधा दो ही चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे, हेलो ब्लैक शर्ट, हाँ तुम्ही पीछे मत देखो, तुम्ही फोन नीचे है तुम्हारे, रील देखो, लेकिन सुनो भी बात, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे यूटिलाइज करें, ठीक है। थैंक यू रितु मैम, थैंक यू प्रमोद सर।